مالک تیرے کروں پر ایمان ہے ہمارا، بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، ہے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر احسان بھائی۔ ابھی خواتین حضرات وقفے ہوئے جانے سے پہلے اپنے علماء کرام کے ساتھ آج ایک ماں باپ یہاں پر صرف اپنی فریاد لے کر آئے ہیں کہ صبر تو پتہ نہیں ان کو کب آئے گا، کب ان کی ہمت دوبارہ جڑ پائے گی، اس وقت صرف انصاف کی تلاش میں ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کے قتل کرنے والے ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وقفے میں جب جا رہے تھے تو حضرت پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں تاکہ تھوڑی رہنمائی ہو سکے۔ حضرت آپ نے بات کی ان سے؟ میں چاہ رہا تھا کہ یہ خود آن ایئر بتائیں، بتائیے جی، آپ پوچھیں۔ اور ذمہ داران کو پتہ چلے کہ کتنی غیر ذمہ داری سے کام ہو رہا ہے۔ اور میں چیف منسٹر سے بھی کہوں گا کہ ان مظلوموں کو اگر آپ انصاف نہیں دلا سکتے تو استعفیٰ دے کر سائٹ پہ ہو جائیں اور ایسے آدمی کو ذمہ داری دیں جو یہ کام کر سکے۔ کیا مشکل ہے آپ کے کیس میں، بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ 19 اپریل کا واقعہ ہے اور آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک وہاں چلان پیش نہیں ہوا کورٹ کے اندر۔ یہ دیکھیں 19 اپریل کا واقعہ ہے۔ 2 مہینے، ایک تو اولاد کا غم اور صدمہ، اس کے بعد پھر پولیس کے چکر کھاتے رہے اور اس کے بعد پولیس جو ان کو ٹالتی رہے۔ یہ کون سا انصاف دلانے والے لوگ؟ چلان وہاں پیش ہو گیا تو وہ دیتے نہیں ہیں، اب ہمیں ہمیں تو مل گیا چلان۔ ابھی کون سے تھانے میں آپ نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے؟ یہ مومن آباد تھانے میں۔ مومن آباد تھانے میں ایس ایچ او کا نام کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ابھی چیک کروا لیتے ہیں۔ وہ کھٹک صاحب میں نام ہے ان کا۔ اس کو لکھوائیے۔ انہوں نے تو چلان پیش کر دیا کورٹ میں ابھی، لیکن کورٹ والے چلان نہیں دیتے، بولتے ہیں آج بھی کل ان کی تاریخ ہے 14 تاریخ۔ کورٹ والوں کو رشوت نہیں دی ہوگی تو یہ مسئلہ چلے گا۔ کل 14 تاریخ کی میں یہاں پر چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر کورٹ میں یہ مسائل چلیں۔ ایک تو بچوں کی قربانی ہو گئی اور اس کے بعد اب وہ کورٹ والوں کی جیبیں بھرتے رہیں تاکہ چلان ملے۔ آپ انصاف نہیں دلائیں گے تو قیامت میں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں نے سب کو فیکس کرا تھا اس چیز کا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ یہاں تک کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی کرا، یہاں کے جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی میں نے کرا، جنرل رائی شریف صاحب کو بھی میں نے کرا، وزیر اعظم صاحب کو بھی کرا میں نے۔ یہ ملک ہے یا کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں نے وزیر داخلہ صاحب کو بھی کرا۔ بس یہ تھا کہ انصاف ملتا تو ہے، مجرم آزاد ہو جاتے ہیں، انصاف ملتا تو ہے، پولیس والے لے کے آتے ہیں اور بڑی اچھی گاڑیوں میں لے کے گھماتے ہیں، انصاف ملتا تو ہے۔ آپ اس ملک کے اندر عدالتوں کے اندر اے سی لگ جاتا ہے، انصاف ملتا تو ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے مجرموں کو، انصاف ملتا تو ہے۔ یہ ملک ہے تو ہے، اب انصاف ملتا تو ہے اس طرح کا۔ 2 مہینے بعد تو چلان پیش کیا جاتا ہے، انصاف مل تو رہا ہے۔ جی ہاں، یہی صورتحال ہے۔ خوار اور پھر انصاف مل رہا ہے، آ کے بیٹھ جائیں گے پیچھے سے، کیا ہوگا؟ مجرم آزاد ہو جائے۔ میں تو میڈیا سے سوال کرتا ہوں، گھر والے گھوم رہے ہیں، میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح بہت سے مظلوموں کا کیس میڈیا نے اٹھایا، آگے پریزنٹ کیا، یہاں پر بھی اچھا موقع ہے، خاص کر اتنی مظلومیت کے ساتھ۔ ضمانت سے باہر ہے وہ، ضمانت باہر آ گیا، ابھی اور آگے ہوگا۔ ضمانت کے لیے اس کے گھر والے گھوم رہے ہیں، لڑکے اس آدمی کے، کہ ہم اس کی ضمانت کرائیں گے اس کی۔ اس کا ابھی 3 وہ بھی ہو جائے، یہاں تو سب ہو جاتا ہے۔ 3 تاریخ کو پیشی تھی، اس کو پیش نہیں کرا گیا وہاں پہ۔
मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो जमानत पर रहा हो भी गया ना, वो जहन्नुम की वहां से जमानत पर नहीं बच सकता, नहीं बच लेकिन सकता, वहां से रहा अब आपके दिल अदालत को से कैसे सुकून, हाँ वहाँ जो है ना, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, हुक्म कुरानी हिम्मत से रहिएगा ताकि ये हुक्म कुरानी आगे बढ़ता रहे, और जो जो इस केस में खराबी पैदा करेगा वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है कि क्यों दो मजलूम बच्चों के कातिल को इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और अगर वो कहें कि फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं तो यही कि इनको इतनी जहमत में डाल रहे हैं, इसका मतलब है उनको आराम में डाल रहे हैं। मैं मीडिया से, पूरी अदलिया से, पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से दरखास्त करता हूं, इस माह मुबारक में अल्लाह का वास्ता है, जिनका केस वाज़े है, मालूम है, उनको उनका हक दिलाइए ताकि इन मजलूमों की आहें आप लोगों को ना लगे। सब जगह अपना कबूल कर लिया, जो समी थाने में अलग जो कबूल करा, मीडिया में अलग करा इन्होंने, यहाँ तक कि जो जज के भाई एक केस है उसके सामने भी कमरे में जाके कबूल करा इन्होंने, फिर भी इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। बड़ी बात है कि ये कबूल करने के बावजूद भी केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आज के आपके इस प्रोग्राम की बरकत से कम इन मजलूमों का इनका हक मिलेगा, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जिम्मेदारान इनकी बरकत से और भी मजलूमों को उनके हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। इन माँ बाप के साथ तो आप लोगों की दुआएं आज से जुड़ ही जाएंगी। जब दुआएं जुड़ेंगी तो इनको हिम्मत भी आएगी ताकि ये अपने बच्चियों को और अपने भतीजे के बेटे जो इनके रिश्ते में पोता होता था और इनको दादा कहता था, 5 साल का अली, इनको इंसाफ मिल सके, इन लोगों को सब्र मिल सके, और इन लोगों को हिम्मत और ताकत दे परवरदिगार कि ये इस केस को आगे लेकर जाएं और दूसरे और दीगर मजलूम फैमिलीज के लिए मिसाल बने। बेशक हम हुज़ूर दुआ यही आज़ाद, करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ सब्र के लिए दुआ की मैं गुजारिश करूंगी हजरत से, और कहूंगी कि हकीम मुफ्ती नूर मेरे रहमानी साहब और अल्लामा शबीर मेसवी साहब, आप दोनों के आने का बेहद बहुत शुक्रिया। कहूंगी थोड़ी सी दुआ कर दीजिए ताकि जितने भी माँ बाप यहाँ पर देख रहे हैं, घर वाले, जितने भी लोग जो इस तरह के जुल्म का शिकार हुए, रब ताला उनको रमजान की बरकत से सब्र और हिम्मत दे सके। اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सहर अफ्तार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ऐ अल्लाह तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये बंदे और बंदियां यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये माँ बाप तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके बच्चों को दरिंदों ने कत्ल कर दिया, ऐ अल्लाह इंसाफ के मुंतजिर हैं, तेरी बारगाह में एक रट लगाते हैं, तेरी अदालत में अभी दरखास्त पेश कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तू अपनी अदालत से इंसाफ इनको पहुंचा, ऐ अल्लाह इनकी जो मुश्किलात हैं दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, ऐ परवरदिगार हमारी हालतों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हम पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शयातीन के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, आने वाली आफात और बलैयात से बचा। ऐ अल्लाह हम सबको परेशानी से बचा, ऐ अल्लाह हम सबको कर्ज से बचा, ऐ अल्लाह हम सबको मर्द से बचा। एक मर्तबा फिर इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम वो जो बच्चियां इनके सामने घुमा फिरा करती थी, आज उन कमरों में जाते हैं वो खाली वीरान है। ऐ अल्लाह ये माँ बाप हैं तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनको दिली सुकून अता फरमा, इनको जहनी सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके कामों में आसानी अता फरमा, इनकी घरों में रहमत बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें और रहमत अता फरमा, ऐ अल्लाह इन पर करम नाजी अता फरमा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता करे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे यहाँ पर शरीक उलमा किराम का बेहद शुक्रिया, मैं साथ रहेगा। अभी हम वक्फे के बाद आ रहे हैं। इंसानियत का सिर्फ एक हिस्सा आपने देखा, एक और हिस्सा बाकी है, हमारे साथ रहिएगा।
वसल्लम देखने वालों को, सुनने वालों को, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, रमजान इश्क के ट्रांसमिशन ATV और A+ पर आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। फेसबुक पर भी आप हमें देख सकते हैं। हमारे पास आप लोगों के फोन कॉल्स, मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। अमजद साबरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा। खैरियत से हैं? किचन सेगमेंट सही निकल आया? किचन सेगमेंट सही हो गया था? अच्छा, तब जो भाई बस मसरूफ है माशाल्लाह, जाहिर है सबसे मोहब्बतें, दोस्तियां और सबसे भाईचारा इतना है, हर जगह सबका दिल रखते हैं माशाल्लाह से हमारे प्यारे भाई। जान कुर्बान मेरी इन पर। ख़वातीन और हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ऐसे माँ बाप को देखा जिनकी पूरी जन्नत उनसे छिन गई। बहुत हिम्मत के साथ गए और वक्त में बजाते हुए मुझे कह रहे हैं कि बच्चियों को इतना शौक था आपके प्रोग्राम में आने का, हमें क्या पता था हमें आना पड़ेगा। इतना मेरा दिल खराब हुआ है, इतना मेरा दिल खराब हुआ है। और जब जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद, हमारे बच्चों के आने का बहुत शौक है, तो मुझे खुशी होती है कि बच्चे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। और वो 2-3 बच्चे खूबसूरत शहजादे शहजादियां जो अभी हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में और इस शहर में है और वो नहीं आ पाए, खैर अल्लाह को जो मंजूर हो। एक अल्लाह को जो मंजूर होता है वो रब ताला करता है, एक हम जो समझते हैं हम वो करते हैं। हम जो कभी कभी समझकर भी नहीं करते, उसका भी बहुत एक अहम सवाल उठता है जहनों में। आप लोगों को चंद तस्वीरें दिखाते हैं, उन तस्वीर पर मैं कुछ कहूंगी तो मैं कहूंगी कि आप लोगों के साथ कि जब मैं नाम लूं शख्सियत का यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का एजाज हासिल है कि मैंने उस शख्सियत, उस इंसान के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत रेडियो, वॉइस ओवर और पाकिस्तान टेलीविजन से की, जिसका मुझे बहुत फख्र है। आज अगर मेरा तलफ़ुज़, मेरी अदायगी या मेरे काम में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है, इसमें उस इदारे का बहुत बड़ा नाम है। और मुझे इंट्रोड्यूस करने वाली पर्सनालिटी शाहीन अंसारी, ये सब मेरे उस्ताद, ऐसे लोग मेरे उस्ताद, ऐसे लोग मेरे चलते फिरते इंस्टीट्यूट, जिनके साथ बैठकर मैंने घंटों बातें की हैं और घंटों हम लोगों ने काम किया है। इस वक्त उनके हवाले से फेसबुक पर बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि इनके हालात ठीक नहीं है, कोई कह रहा है ये इस वक्त मजबूर हैं। ये है कौन? आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टेलीविजन स्क्रीन का एक ऐसा नाम जिनके नाम का ना सिर्फ मतलब बड़ा है, बल्कि उनका काम भी उनके नाम की तरह बहुत बड़ा है। सितारा और मेहरुन्निसा और रोजी ड्रामा में उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि हकीकत का गुमा होने लगा। मैं बहुत सी तालियों में, बहुत से एहतराम मोहब्बत के साथ कहूंगी आप सबसे कीजिए उनका इस्तकबाल, मेरे सीनियर, मेरे इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट अकबर सुभानी साहब। जोरदार खड़े होके सर करीब मैं कहूंगी आपके सब एहतराम में खड़े हुए, तो करीब आके जरा बिस्मिल्लाह। जोरदार अकबर सुभानी साहब। जज़ाकल्लाह, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। काइंडली बी सीटेड, बैठ जाए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ आपको देखकर, आपको देख कर आपके साथ काम करने का मुझे एजाज हासिल हुआ। मुझे तो सारा सब कुछ वो आंखों में आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये एजाज मुझे हासिल हुआ कि मैं आपके साथ काम अल्लाह कर सर, सकता हूं। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए सर तशरीफ रखिए, शुक्रिया, सर तशरीफ रखिए। शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत, चलता फिरता इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे मौकों पर कहां कहां कैसी कैसी रहनुमाई की है कि यूं नहीं माया बेटा यूं करो, यूं नहीं यूं बोलो, इसको अपना सीन रुकवा के रुक जाओ, मैं इसको जरा बता दूं कैसे करना है। ये तालीमात मिली है मुझे मेरे सीनियर से। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एक ऐसा नाम पाकिस्तान का
فخر ہے ہمیں کہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے لوگ، ایسے ہمارے سینئرز ہیں.